के अंदर जो भी मैंने इंफॉर्मेशन क्या है, सपोज आई वांट टू स्टोर द एम्प्लॉय आईडी ऑफ द एम्प्लॉइज, then I want to store the name of the employees, then I store the database date of birth of the employee, address and phone number. So this is the simplest way of designing a particular designing a database or a table. So uh, for initially my requirement was only to store the information regarding various employees in my company. So what you did was you created a table and you inserted the values into this. So the structure of the table is that, or schema of the table is, and then employee table along with these columns, 5 columns, and their data types. So what you did was you created the employee ID as a primary key, the name, date of birth, and address and phone are other attributes, and you have inserted some instance the database. So you have created employee E1, E2, E3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up till employee number 15. You have created. So you have created this table. After few days, I say no. What has to be done is means along with the employees, I want to store the information of my department as well. So what you do, you are not aware about database designing concepts, and so what you did was you simply. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही है यस अभी? सर। No, sir. सर नहीं, स्क्रीन शो ओहो, नहीं होगी। ओके ओके, तो यू शुड हैव स्पोकन ना। मैसेज मत डाला करो, क्योंकि एक बार मैं उस पे स्लाइड पे आ जाता हूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है. सो आई डोंट सी द मैसेज देन. सो अब इज हो इट रहा है शिफ्ट। नाउ? अब दिख रहा है, सो ठीक है. तो यस हम सर। ये सर कह आपका रहे थे. कैमरा ऑन है सर. ओहो, खोपड़ी दिख रही होगी मेरी. यस सर, वो भी क्वार्टर. हाँ, क्वार्टर, वो भी एकदम साफ वाली, बिना बाल वाली ना. चलो यस एनीवे, सर. एनीवे, कोई बात नहीं, सबका समय ऐसा आता है. Anyway, so we were talking that I ask you to create a table to store information regarding employees. So you have created this table, and after few days I said no. What I have to do is, along with the details of the employees, I want to store the details of the department also. So somebody who was creating this database, he was not aware of the pros and cons of database design. So what he did, he added some columns to the existing table, and those columns were the DID, department ID, then department name, department location, the phone number of the department, and the EID, employee ID of the person who is heading that department. So this table was created and the insertions were done. So what is the problem with this? So whenever I say okay, I want to add more information, so what we will do, normal people will just add some columns to that and add the new information into that. But what these type of tables, what problems they do create? So सबसे they create some problems, and these problems are called anomalies. Okay, and we have 3 types of anomalies: the insertion anomaly, the deletion anomaly, and the updation anomaly, and together as a whole set they are called as update anomalies. तो कहीं भी आपसे पूछा जाता है लिस्ट आउट द अपडेट एनॉमलीज, तो उसमें आपको 3 एनॉमलीज बतानी है: एक इंसर्शन एनॉमली, एक डिलीशन anomaly, and एक update anomaly. And together all these 3 are called update anomaly. And anomaly simply means problems. Some means some trade offs, जो हमारा हम एक काम करते हैं उसके एवज में जो हमें means whatever we have to bear with that, that is called anomaly. So what is the problem with this type of design where employee के साथ मैंने डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन और डाल दिया, and I called this table as employee department. Earlier I was calling it as employee because we had only employees detail. Later on, when I added the details of the department, I'm calling that as an employee department. Now all the information which we had in the employee table, they are present in here also, and all the information which the department information which we had to insert new, they were inserted like this. So every employee, E1, E2, E3, and E4, you see, they belong to the department number D1. Okay, and similarly, the employees E5 and E6, they E6 and E7, they belong to department number
D2. Then E8 and E9 they belong to department number D3, and E10 to E14 they all belong to department number D4. Who is the head of the department for D1? The employee with employee ID E2 is the head of the department. ठीक है ना? ऐसे ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर D2 इज E3, D3 का E4 है, एंड D4 का E5 है. सो सॉरी, sorry, I have made some mistake. And department's head can be a person who is already employee of the department. तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा. So it is E8 here and it is E10 here. तो ये मैंने अभी क्रिएट करा है, इसलिए इट वाज जस्ट ध्यान नहीं दिया मैंने. तो this is what we have done. I means the HOD of department D1 is E2, D2 is E5, D3 is E8, and D4 is E10. So what is the problem with this design? The first problem is the insertion anomaly. अब इंसर्शन अनोमली क्या कहता है कि इफ वी हैव अ पार्शियल इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट इंसर्ट दैट इंफॉर्मेशन इनटू द टेबल. नाउ व्हाट हैपेंस, जिसने भी टेबल बनाया इसने ये टेबल तो बना दिया. अब मैंने कहा कि यार मेरे यहाँ एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन कर लिया है और उसकी जो एम्प्लॉय आईडी रखनी है मुझे, दैट इज E15, उसका नाम इज N15 एंड सो ऑन. बट I have not allotted any department to that employee. मैंने ये नहीं बताया कि वो employee किस department को belong करता है. So what will the designer say? No, I cannot insert this partial information because I have to insert this whole row. ठीक है? So he'll say नहीं, अभी तो नहीं है. तो he will say okay, I will insert a lot of null values here. तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिपार्टमेंट की जितनी इंफॉर्मेशन होगी इसकी जगह पे मुझे नल वैल्यूज डालनी पड़ेंगी. सो लॉट ऑफ नल वैल्यूज इन अ रिलेशनल डेटाबेस टेबल is also not allowed and it is not desired there. So that will create the problem. Suppose in the table मैंने डिजाइनर ने कहा कि मैंने ऑलरेडी EID को मैंने प्राइमरी की बना रखा है. What will happen? A primary key will be there and these values will be null, so lot of null. Now what happens? Suppose ये एम्प्लॉय की बात नहीं करते हैं, मैंने अपने डिजाइनर से कहा कि नहीं ऐसा है कि आई हैव टू क्रिएट वन मोर डिपार्टमेंट, लेट अस कॉल इट एज D5. So I want to create a department D5 and its name is say DN5 and location is L5, department phone is DPH5 and HO means I don't have because, लेकिन उसने हमने ये कहा कि डिपार्टमेंट तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अभी उसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है. तो जब कोई एम्प्लॉय नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, ये part will go empty and this part will go empty. The HOD ID will go empty. Now, since I've created this EID as a primary key, so I cannot leave the column primary key with a null value. So it will again create a problem. Okay. So this is what insertion anomaly is, when I cannot insert a new information into the table just because partial information is available, total information is not available. This is what is called insertion anomaly. इतना clear है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Okay. And then next we talk about the update anomaly. Now suppose E15 was the employee was created and ये चीज फिर से मैं copy कर लूँ यहाँ पे. I've changed this, so I will copy this again and change it here. So I've made the changes.
and then suppose I'm talking about this update anomaly. Now what does update anomaly says? अब आप देखो एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज दैट जितने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे उतनी ही मेरी डेटा जो है रिडंडेंट होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने एम्प्लॉयज होंगे, अगर से एक डिपार्टमेंट के अंदर 100 एम्प्लॉयज हैं, तो ये डिपार्टमेंट का सेम इंफॉर्मेशन कितनी बार आ रहा है? 100 टाइम्स आएगा। So that is the problem. That is another problem. That means just because I have taken all the informations of department and employees together, therefore a lot of information is being repeated again and again, and that is what is called redundancy. So lot of redundancy is there. अब इस रिडंडेंसी की वजह से प्रॉब्लम क्या होगा? सपोज एम्प्लॉय E2 लीव्स द डिपार्टमेंट एंड E3 इज गिवन द चार्ज ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उतनी जगह मुझे एचओडी की डिटेल्स को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस हुए उसके इंफॉर्मेशन में, तो उतने रोज में चेंज करना पड़ेगा जितने उसके अंदर एम्प्लॉयज हैं। सो दैट इज व्हाट अपडेट अनोमली इज। Just because the data is being repeated again and again, a single change in the data will result into updating a lot of rows. बहुत सारे रोज को अपडेट करने में करना जरूरी हो जाएगा। और बाई मिस्टेक अगर कहीं पे भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हुआ, तो दैट विल क्रिएट द इनकंसिस्टेंसी इन द database. So that's why update anomaly is also a problem in the case of a database design. Just a minute. So that will create a problem. And the next anomaly is the deletion anomaly. अब इसको बहुत ध्यान से देखना। Now what happens, suppose अब मैं कहता हूं कि suppose there is an employee E4 and he resigns from the department, ठीक है ना। So what will happen, अगर मेरा डेटाबेस डिजाइन ऐसा है, तो जैसे ही वो छोड़ेगा, मैं क्या करूंगा, इस रो को डिलीट कर दूंगा, E4 को। Now what happens again, E3 भी थोड़ी देर में छोड़ के चला जाता है, तो आई विल डिलीट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग E3 ऑल्सो। E2 भी छोड़ के चला जाता है, तो आई विल डिलीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग E2 ऑल्सो। एंड फाइनली E1 लीव्स, so I delete the information of E1 also. So what is this problem creating, कि जब तक किसी भी डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय है, तब तक तो उस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन प्रिजर्व्ड है, लेकिन जैसे ही मैं लास्ट एम्प्लॉय को डिलीट करता हूं, all the information regarding department number D1 will be lost. Hello, बताओ, जल्दी बताओ, मैं क्लास ले रहा हूँ। सो मीन्स what happens, एक जगह इंफॉर्मेशन रखने के लिए, अगर एक जैसे इस केस में एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन अगर मुझे डिलीट करनी है, तो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ department, concerned department will also be deleted. So this is what is called deletion anomaly. So that's why due to these problems, we cannot keep all the information in one table or any information in any other table, and that's why we need to redesign a database. So why do we design a database? We just design the database to minimize two things. One is the updation anomalies, that means तीनों anomaly जो हैं इनको minimum करने के लिए, और दूसरा redundancy को minimize करने के लिए। तो जस्ट अ मिनट सर, आपकी ऑडियो बहुत लो आ रही है। अभी एक मिनट।
So am I audible now? यस सर. Okay, सर एक बार अपडेट एंड ऑल भी एक बार दोबारा से बता दीजिए. ठीक है. अपडेट एनॉमली मतलब क्या हुआ, क्या हो रहा है, देखो ये एक ही डिपार्टमेंट में कई सारे एम्प्लॉयज होने की वजह से डिपार्टमेंट का पूरा इंफॉर्मेशन कई बार रिपीट हो रहा है. इज इट क्लियर और नॉट? यस सर. ठीक है ना, ये कहलाता है रिडंडेंसी. अब सपोज एक डिपार्टमेंट के अंदर से 200 एम्प्लॉयज हैं, तो डिपार्टमेंट की सेम इंफॉर्मेशन 200 बार आएगी. ठीक है. अब 200 बार आने की वजह से अगर डिपार्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करना है, मान लो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेंज हो गया, तो 200 रोज में ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट की डिटेल्स को चेंज करनी पड़ेगी. या सपोज डिपार्टमेंट का फोन चेंज हो गया, तो 200 रोज में चेंज करना पड़ेगा. तो क्या हो रहा है कि सिंगल चेंज is creating is forcing us to update huge numbers of rows in the table. ठीक है ना, एक छोटा छोटा सा चेंज, केवल एम्प्लॉय आईडी चेंज करना था, उसकी वजह से मैंने 200 रोज अपडेट कर दिए टेबल के अंदर. पहली प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम, अगर इन 200 रोज में कहीं भी एक जगह हम गलती से भूल गए अपडेट करना, तो व्हाट विल हैपन, सपोज यहाँ पे E3 करना था और मैंने कर दिया E4, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. ठीक है ना. सो या कहीं पे पहले वाला ही रह गया, तो फिर व्हाट विल हैपन, दैट विल क्रिएट इनकंसिस्टेंसी इन द डेटाबेस. ठीक है. दैट इज कॉल्ड अपडेशन. मतलब ये कि फॉर स्मॉल चेंजेस, जस्ट बिकॉज द डेटा इज बीइंग रिपीटेड एंड अगेन एंड अगेन, वी नीड टू अपडेट सो मेनी रोज. एंड इफ बाय एक्सीडेंट any updation is remains or is not done, that will create an inconsistent database. Clear है? यस. ओके. सो डिलीशन अनोमली बता दिया. जब तक किसी भी, अब इस केस में क्या होगा, ये डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन तब तक ही है इस टेबल के अंदर जब तक एटलीस्ट एक एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. जैसे ही लास्ट एम्प्लॉय छोड़ेगा, उस डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी. दैट मीन्स डिलीशन ऑफ one information leads to deletion of other information, though we do not want to delete it. So that's why we go for designing or normalization of database, because just we want to reduce the three anomalies and the redundancy in the database. तो अगर कोई नॉर्मलाइजेशन का डेफिनेशन पूछता है या डेटाबेस डिजाइनिंग का डेफिनेशन पूछता है, तो यू हैव जस्ट टू आंसर कि normalization is the process of analyzing and synthesizing a database in order to minimize redundancy and the update anomalies. इतनी चीजें बस बतानी है, हम हटा नहीं सकते. इस एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी रिलेशनल डेटाबेस से ना तो ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा डेटाबेस में कोई रिडंडेंसी होगी ही नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता. ठीक है ना. और इसी तरह से हम डिलीशन, अपडेशन और इंसर्शन एनॉमलीज को भी हम नहीं है. और ये तीनों एनॉमलीज जो है आती ही केवल इसलिए है क्योंकि हमारा डेटा रिडंडेंट है वहां पे. ठीक है ना. तो जब हम रिडंडेंसी को एकदम नहीं हटा सकते, तो इन तीनों एनॉमलीज को भी एकदम से खत्म नहीं कर सकते. सो हम, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जस्ट टू मिनिमाइज दिस थ्री एनॉमलीज एंड रिडंडेंसी. हम रिडंडेंसी को मिनिमाइज करते हैं, ये तीनों एनॉमलीज मिनिमाइज हो जाएंगी, लेकिन हम रिडंडेंसी को खत्म नहीं कर सकते कभी भी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर. एटलीस्ट फॉरेन की और प्राइमरी की तो रिपीट ही हो रही होंगी अगर कुछ नहीं हो रहा होगा, बिकॉज रिलेशनशिप हमें स्टेब्लिश करना है टेबल्स के बीच में. तो प्राइमरी की वैल्यू जहां भी फॉरेन की होगी वो रिडंडेंट वैल्यू है. तो दैट मीन्स वी कैन नॉट रिमूव रिडंडेंसी टोटली, but we can synthesize the database just to reduce the redundancy and the three anomalies. So व्हाट वी डू, तो उस केस में कोई एक टेबल है, तो इस केस में अगर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन ये आएगा कि यार डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को अलग रखो, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को अलग रखो और उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लो. तो हम क्या करेंगे, एक टेबल एम्प्लॉय का बना देंगे, एक टेबल डिपार्टमेंट का बना देंगे. एम्प्लॉय वाले टेबल का एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की हो जाएगा, डिपार्टमेंट वाले टेबल का डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की हो जाएगा, और यहाँ पे जो एचओडी ईआईडी है वो प्राइमरी की, यहाँ का ईआईडी जो है वो एज अ फॉरेन की आ जाएगा दूसरे टेबल में. तो व्हाट विल हैपन, अब उस केस में क्या होगा, यहाँ कितने भी एम्प्लॉयज हो,
ठीक है ना, सॉरी ये वाला नहीं जाएगा, इसका जो डिपार्टमेंट आईडी है वो एम्प्लॉय टेबल में एज अ फॉरेन की चला जाएगा। तो अब क्या होगा, एम्प्लॉय इवन किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, मुझे क्या करना है, उसके फॉरेन की में केवल D1 लिख देना है, E2 के आगे D2 लिख देना है, E3 के आगे D3 लिख देना है, E4 के आगे D4 लिख लेना है। तो उस केस में व्हाट विल हैपन कि सपोज मैं ऐसे करता हूं, ये इंफॉर्मेशन फिलहाल के लिए हटाता हूं, तो व्हाट विल हैपन, ये देखो। सो नाउ ये एम्प्लॉय टेबल है, डिपार्टमेंट हमारा कहीं दूसरा टेबल बना होगा, एम्प्लॉय टेबल में मैंने एक फॉरेन की ऐड कर दी DID, जिस डिपार्टमेंट को वो एम्प्लॉय बिलोंग करता है। तो अब जो रिडंडेंसी पूरे डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही थी, अब क्या रिपीट हो रही है, केवल डिपार्टमेंट आईडी रिपीट हो रही है। ठीक है ना, हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट डिपार्टमेंट आईडी। अब टेबल के अंदर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन केवल एक जगह होगी। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मैंने पूछा था, ठीक है। सो अब इसकी वजह से क्या होगा, डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन, अब डिपार्टमेंट टेबल में क्या होगा, ये डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन केवल एक बार आएगी, ये एक बार D2 की आएगी, एक बार D3 की आएगी, एक बार D4 की आएगी। अब जब भी मुझे इससे, अब देखो तीनों एनॉमलीज मिनिमाइज कैसे हो रही हैं, पहली चीज तो रिडंडेंसी खत्म हो गई। तो अब अपडेशन के टाइम पे केवल मुझे ये ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट आईडी हर जगह अपडेट हो जाए, बस एक कॉलम। पहले अपडेशन अगर सारे कॉलम्स पे पॉसिबिलिटी थी, ठीक है ना। अब डिपार्टमेंट में कोई भी अपडेशन करना है तो हम डिपार्टमेंट टेबल में केवल एक रो को अपडेट करना पड़ेगा, अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हमें करना है। दूसरा चीज, हमें केवल डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन पता है तो मैं डिपार्टमेंट टेबल में इंफॉर्मेशन को डाल दूंगा, अगर मुझे केवल एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन पता है तो मैं एम्प्लॉय टेबल में डाल दूंगा। अगर उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नहीं अलॉकेट हुआ है तो उसके आगे ये वाली फील्ड जो है वो नल हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा, तो सिंगल नल आएगा। ठीक है ना। उसके बाद डिलीशन की बात करते हैं, हम सारे एम्प्लॉयज डिलीट कर दें लेकिन डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट रहेगा। तो ये तीनों एनॉमलीज और रिडंडेंसी सारी की सारी एड्रेस हो जाती हैं जब मैं टेबल को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी डू इन नॉर्मलाइजेशन और डेटाबेस डिजाइन। जो भी हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको कुछ सेट ऑफ रूल्स के ऊपर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, अप्लाइंग दो सेट ऑफ रूल्स। और जिस रूल्स को ओबे करता जाता है उसमें हम कहते हैं कि ये इस लेवल तक के प्योरिटी पे आ गया है, और उसके आगे अगर जरूरत होती है तो और रूल्स अप्लाई करके उसको प्योरीफाई करते चले जाते हैं या ऑप्टिमाइज करते चले जाते हैं। ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल इसमें देख लो, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट आईडी हम तोड़ देते, तोड़ने से क्या होगा, जब भी उनकी नेचुरल ज्वाइन लेंगे तो हमारा ओरिजिनल रिलेशन आ जाना चाहिए। तो इसमें पॉसिबिलिटी ब्रेकिंग में दो तरह की होती है, कि एक तो ये होती है कि जब मैंने नेचुरल ज्वाइन लिया दोनों डिकम्पोजिशन का तो रिजल्ट मेरा एग्जैक्टली पहले वाला टेबल है, ओरिजिनल टेबल है। सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस केस में पहले वाले में कि रिपीटेशंस भी आ सकती हैं, जैसे मान लो L100 यहाँ पे एक बार था, नाउ L100 इज बीइंग रिपीटेड 3 टाइम्स हियर, और हर एक के साथ इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है। ठीक है ना। तो अगर आप देखो L100 ये वाली वैल्यू केवल इन तीनों के साथ हो रही है। देन नेक्स्ट इज विदाउट रिपीटेशन हो सकता है, तो यहाँ पे L100 अब this one, so we do not repeat any information। and the third, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे जब नॉर्मल फॉर्म्स की बात कर रहे होंगे, तो अभी ये समझने के लिए बस इतना समझ लो। ठीक है। सो अब जब मैं किसी टेबल को तोड़ता हूं तो वी हैव टू सी, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास ये आया कि अरे ये चीजें हैं और वी हैव टू ब्रेक द टेबल। ब्रेक करने के बाद वी हैव टू एनालाइज, बिकॉज हर एक डिकम्पोजिशन जो होता है वो गुड डिकम्पोजिशन नहीं होता है। देयर आर डिकम्पोजिशन विच आर नॉट डिजायर्ड, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय टेबल था, एम्प्लॉय टेबल में ये सारे फील्ड थे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय टेलीफोन नंबर, स्टार्ट डेट, और मैंने इसको क्या करा, दो स्मॉलर टेबल्स में तोड़ दिया ड्यू टू सम रीजन।
The first table was employee 1, which has only two fields, employee ID and employee name. The second table was employee 2, उसके अंदर employee name, telephone number और start date. ठीक है. Now what happens, इस डिकम्पोजिशन को सपोज मैं इसको नेचुरल ज्वाइन लेता हूं, तो मैंने उस एम्प्लॉय को, ये इंफॉर्मेशन स्टोर थी एम्प्लॉय के अंदर, जब मैंने डिकम्पोज करा तो ये एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम वाला जो वैल्यू है वो यहाँ आ गई, और उसके बाद एम्प्लॉय नेम, टेलीफोन नंबर और स्टार्ट डेट यहाँ आ गई. अब जब मैं इसका नेचुरल ज्वाइन लूंगा तो व्हाट विल हैपन, हर एक रो के साथ कंबाइन करेगा और इक्वालिटी पे वो करता जाएगा. इक्वालिटी किस पे होगी, कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर. यानी कि एम्प्लॉय नेम दोनों टेबल के अंदर कॉमन है, तो किम किम जहां जहां आएगा वो सब वो कर देगा. तो यहाँ पे ओरिजिनली जो दो रोज थे, अब ये रिडंडेंट कॉम्बिनेशन आ गया. इस तरह के डिकम्पोजिशन को जहां पे जब मैं नेचुरल ज्वाइन लेता हूं दोनों डिकम्पोजिशन का, तो जो मेरा रिजल्ट आता है उसमें या तो एक्स्ट्रा रोज जनरेट हो जाए या कोई एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन खत्म हो जाए. दोनों ही केस में हम डिकम्पोजिशन को बोलते हैं इट इज अ लॉसी डिकम्पोजिशन. ठीक है ना. जहां पे नया रो, जो रो नहीं आने चाहिए वो आ गया. देखो ओरिजिनल टेबल में क्या था, केवल दो रोज थे, लेकिन चूंकि मैंने कॉमन एट्रीब्यूट जो लिया था दोनों में, वो एम्प्लॉय नेम लिया था, तो अब उसकी वजह से क्या हुआ, चूंकि दोनों में किम किम था, तो सारे रोज की पॉसिबिलिटी जो भी नेचुरल कार्टेशियन प्रोडक्ट आया वही वैलिड हो गया इस नेचुरल ज्वाइन के लिए, बिकॉज सारी जगह ये दोनों कॉलम्स की वैल्यूज बराबर हैं. इसके साथ किम बराबर है, इसके साथ किम बराबर है, इसके साथ बराबर है और इसके साथ बराबर. तो ये चार रोज आ गए. इसका मतलब जो हमारे दो वैलिड रोज थे, इसको अलावा दो इनवैलिड रोज आ गई. इनको हम रिडंडेंट रोज बोलते हैं या रिडंडेंट टपल्स बोलते हैं. दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोई इंफॉर्मेशन वहां से हमारी हट जाए. ठीक है ना. उसको हम, तो दोनों ही केस में, चाहे मेरे रिजल्ट में नया रो आ रहा है, एक्स्ट्रा रो आ रहा है जो रिक्वायर्ड नहीं था, या कोई रिक्वायर्ड रो गायब हो जा रहा है, दोनों ही केस में हम बोलते हैं कि जो हमारा डिकम्पोजिशन है वो लॉसी डिकम्पोजिशन है. ठीक है ना. तो अब इसके बाद एक चीज मैं ये बता दूं कि जो हमारा काम क्या है, जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हम डेटाबेस को अपने एनालाइज करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो डेटाबेस हमारे किस रूल को ओबे कर रहा है. ठीक है ना. एंड डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द रूल इट इज ओबेइंग, हम डेटाबेस को कहते हैं कि वो इस प्योरिटी लेवल पे है, और इन प्योरिटी लेवल्स को हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं. जैसे आप क्लास जब करते हो तो क्लास 1, देन क्लास 2, देन क्लास 3, 4, 5, 6, 7 अप टिल 12. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे क्लास 1 की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर लेते हो तो आपको क्लास 2 में शिफ्ट कर दिया जाता है. इसका मतलब प्रमोट कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि बिकॉज यू हैव फुलफिल्ड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पासिंग क्लास 1. ऐसे क्लास 12 की रिक्वायरमेंट करते ही आप क्लास 12 से ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाते हो. आप अपने ग्रेजुएशन में सेमेस्टर वाइज आगे बढ़ते चले जाते हो, बिकॉज पिछले सेमेस्टर की सारी रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर लिया है. ऐसे ही डेटाबेस डिजाइनिंग का या डेटाबेस प्यूरिफिकेशन का स्टेप बाय स्टेप रूल्स होते हैं, और जो डेटाबेस जिस रूल को स्टेप वो कर रहा होता है, फॉलो कर चुका होता है, हम कहते हैं कि वो उस लेवल ऑफ प्योरिटी में है. और इस लेवल ऑफ प्योरिटी को हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म्स. इस लेवल ऑफ प्योरिटी को हम नॉर्मल फॉर्म्स बोलते हैं. ठीक है ना. दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म्स. अब नॉर्मल फॉर्म्स जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, वो दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सो दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. तो जो मिनिमम लेवल का इंफॉर्मेशन या मिनिमम लेवल के कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई करता है उसको हम बोलते हैं 1NF. हम बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF, या फिर इसको हम बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. हम बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. ऐसी इसके ऊपर के लेवल को जो ओबे करता है उसको हम बोलते हैं 2NF. इसके बाद जो करता है उसको हम बोलते हैं 3NF, third normal form. Then we have a more purified version of 3NF, and that is called BCNF, that is Boyce Code Normal Form.
है ना। इसके बाद हमारे पास 4NF होता है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। सो विल सी वन बाय वन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई रिलेशन 1NF में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है डेटाबेस डिजाइन की उसको भी उसने फॉलो नहीं किया है। अगर 1NF में है तो इस लेवल तक का फॉलो कर चुका है, 2NF में है तो उस लेवल तक का फॉलो कर चुका है, एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट नॉर्मल फॉर्म्स आर। तो अब देखो, सबसे पहली चीज जो हम जो डिस्कस करने जाते हैं वो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सिंपली एक रिक्वायरमेंट है कि किसी भी रिलेशन स्कीमा आर को मैं 1NF में तब बोलूंगा जब उसके जितने भी डोमेन्स हैं दे आर एटॉमिक डोमेन्स। एटॉमिक डोमेन मतलब इनडिविजिबल। इसका मतलब क्या हुआ, आपके टेबल में अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, आपके टेबल में अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो वो हमारा नॉन एटॉमिक डोमेन कहलाएगा, ठीक है ना। कंपोजिट एट्रीब्यूट है, सो नेम कैन बी ब्रोकन इनटू फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो अब जो एक डोमेन है उसको हम 3 सब डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो या फिर अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो सेट ऑफ नेम्स है, ठीक है ना। तो एक ही रो के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू आएंगी। तो अगर मेरे टेबल के अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है और अगर मेरे टेबल के अंदर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो टेबल 1NF में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक नॉर्मल फॉर्म इन विच एवरी टेबल इज अवेलेबल, तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हर एक टेबल, अगर मैंने ईआर डायग्राम से जो ईआर डायग्राम से डेटाबेस डिजाइन का रिडक्शन वाला मेथड पढ़ा था, अगर हम वो फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट के कंपोनेंट्स को एज एट्रीब्यूट बनाते हैं और जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उनको हम अलग करते चले जाते हैं टेबल से। यानी कि अगर मैंने ईआर डायग्राम सही से कर रखा है और उसके बाद उसका कन्वर्जन सही से कर रखा है, तो जो भी मेरा टेबल बनेगा वो एटलीस्ट 1NF में जरूर होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 1NF में नहीं है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा 1NF में, ठीक है ना। तो अब 1NF में हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी चीज को, तो विल गिव। तो किसी भी मींस उसका गोल क्या होता है कि हमें अपने जो डेटाबेस Sir, your voice is coming low. अब ठीक है, Yes, sir. ओके। सो किसी भी डेटाबेस में हमें ये डिजाइन में ये ध्यान देना होता है कि वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन जिस लेवल तक मांगा गया है। अगर आपसे किसी ने कहा 3NF तक आपको नॉर्मलाइज करना है तो 1NF चेक करो, अगर नहीं है तो 1NF में ले आओ, 2NF चेक करो, अगर नहीं है तो 2NF में ले आओ, और 3NF चेक करो, अगर नहीं है तो 3NF में ले आओ। सो 3NF मीन्स यू हैव टू चेक ऑल 1, 2 एंड 3। 1NF मीन्स यू हैव टू चेक ओनली फॉर 1NF। तो नीचे जैसे आते जाएंगे तो ऊपर वाले अपवर्ड कंपेटिबिलिटी आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। सो विल टेक वन एग्जांपल, सपोज वही एम्प्लॉय टेबल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सो आई वांट टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयज, सो आई क्रिएटेड एम्प्लॉय टेबल विद EID, नेम एंड डिपार्टमेंट, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मुझे एम्प्लॉयज के साथ उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनका भी रिकॉर्ड रखना है मुझे अपने टेबल के अंदर। तो जो भी डेटाबेस डिजाइनर था उसने क्या करा कि एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया डिपेंडेंट नेम और इसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बना दिया। व्हाट विल हैपन, सो E1 के आगे रवि, नेहा, देन इसके डिपेंडेंट्स के नेम आ गए, फिर E3 के डिपेंडेंट नेम्स आ गए और E4 के डिपेंडेंट नेम्स आ गए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं E1 के एक डिपेंडेंट से सन का नाम जानना चाहता हूं तो आई कैन नॉट डू, बिकॉज दिस इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे 2 नाम है, रवि भी है और नेहा भी है। सो इस तरह के मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को वी कैन नॉट अलाउ इनटू द टेबल। और इसको अगर मुझे 1NF में, इसका मतलब क्या हुआ कि आप देख लो सिंपली इस टेबल के अंदर ये जो है एटॉमिक डोमेन है। एटॉमिक डोमेन मतलब आई कैन नॉट सब डिवाइड EID, ई नेम, यहाँ पे चूंकि मैंने कंपोजिट नहीं ले रखा है तो ये भी आपका एटॉमिक डोमेन कहलाएगा। डिपार्टमेंट भी एटॉमिक डोमेन कहलाएगा, इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। बट डिपेंडेंट नेम इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और जैसे इस टेबल के अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आया, आप सीधे कह सकते हो कि दिस टेबल एम्प्लॉई इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो हमें करना क्या है, हमें इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने का जो सॉल्यूशन है वो
दो तीन सॉल्यूशंस होते हैं, विल सी विच वन इज द बेस्ट, ठीक है ना, एंड देन विल सी व्हाई डू वी डिकम्पोज टेबल्स इनटू स्मॉलर टेबल्स। सो व्हाट हैपेंस, सो मैंने क्या करा, किसी ने कहा कि नहीं यार ये तो प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हमें रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो जब रीडिजाइन करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, तो पहला किसी ने कहा कि नहीं ऐसा करते हैं ना कि जितने डिपेंडेंट्स हैं उतनी बार रोज को हम डुप्लीकेट कर देते हैं। तो उसने क्या करा, ये एम्प्लॉय की डिटेल्स को डुप्लीकेट करके उतने रोज क्रिएट कर दिए कि इसका पहला डिपेंडेंट ये है, दूसरा डिपेंडेंट ये है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुई, अगर मैंने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना रखा है तो फिर ये रिपीट नहीं हो सकता। we cannot have same values for two rows in the primary key column, ठीक है ना। सो पहली चीज, तो एक चीज हमेशा जान लो कि अगर किसी टेबल में प्राइमरी की है, इसीलिए हम कहते हैं की कांस्टेंट, की कांस्टेंट यही कहता है कि एवरी टेबल शुड हैव एटलीस्ट वन प्राइमरी की, ठीक है ना। तो अगर उस टेबल के अंदर प्राइमरी की है तो ये प्राइमरी की वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती और इसलिए ये रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, रिडंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है ना। सो वो हमेशा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है ना। सो इस इन दैट केस ये सॉल्यूशन इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि इट इज जनरेटिंग लॉट ऑफ डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन फॉर द एम्प्लॉय टेबल। So the owner said no, this design is not acceptable, this is not into 1NF। so अगले ने फिर क्या करा कि फिर उसने कहा कि अच्छा सर, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल और अनदर मेथड। दूसरा मेथड क्या बताया उसने, उसने दूसरा मेथड ये बताया, ठीक है जो डिपेंडेंट नेम है उसको मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि इस केस में देखो, अगर मैं उसने टेबल देखा और उसने कहा किसी एक डिपार्टमेंट के पास मैक्सिमम 5 डिपेंडेंट्स हैं एक एम्प्लॉय के पास, ये वाला देखो, तो उसने टेबल देखा, बोला सर मैक्सिमम 5 हैं तो ज्यादा ज्यादा 5 डिपेंडेंट होंगे हर एम्प्लॉय के। तो उसने क्या करा कि उसने क्या करा कि डिपेंडेंट नेम को 5 स्मॉलर कॉलम्स में ब्रेक कर दिया। उसने कहा D1, D2, D3, D4, D5, डिपेंडेंट नेम 1, डिपेंडेंट नेम 2, डिपेंडेंट नेम 3, डिपेंडेंट नेम 4, डिपेंडेंट नेम 5, और उसने इंफॉर्मेशन डाल दी। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि E1 के पास केवल 2 डिपेंडेंट्स थे तो बाकी के 3 कॉलम्स उसके नल वैल्यूज आ गए। ऐसे ही E2 के पास 3 नल आ गए, E3 के पास 1 नल आ गया, E4 के पास एग्जैक्टली 5 थे तो उसमें कोई नल वैल्यू नहीं आई। E5 एक नया एम्प्लॉय था और वो अनमैरिड था और उसका कोई डिपेंडेंट नहीं था, मदर फादर मतलब ही डिडंट हैव एनी डिपेंडेंट, सो उसकी ये नल वैल्यू आ गई। और एक एम्प्लॉय E6 था जिसके पास 6 डिपेंडेंट्स थे, तो यहाँ तो केवल हम 5 डिपेंडेंट्स का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, यानी कि छठे वाले डिपेंडेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो हम नहीं स्टोर कर सकते टेबल के। तो अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई, पहली प्रॉब्लम तो ये आई कि लॉट ऑफ नल वैल्यूज आर बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि ये अगर किसी के पास इस कांस्टेंट से ज्यादा वैल्यूज हैं तो हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लॉस करेंगे, और दोनों ही अनडिजायरेबल होते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है ना। तो अगले ने कहा कि नहीं ये वाला भी डिजाइन जो है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। देन ही केम विथ अनदर डिजाइन एंड ही सेड वी कैन डू लाइक दिस आल्सो। ही सेड कि विल ब्रेक द टेबल इनटू 2 स्मॉलर टेबल्स। तो जो एम्प्लॉय टेबल था उसको उन्होंने कहा कि हम 2 टेबल्स में ब्रेक कर लेते हैं। पहला टेबल जो है वो हम कैसे ब्रेक करेंगे, एक में एम्प्लॉय आईडी, ई नेम एंड देन विल द डिपार्टमेंट डिटेल्स। सो ही ब्रोक द दैट टेबल इनटू दिस। सो पहला इसको एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 लिख लेना, या इसको एम्प्लॉय कर लेना और लेट मी कॉल इट एज एम्प्लॉय डिपेंडेंट। वो बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, मैं क्लास खत्म करता हूँ फिर बात करते हैं, ठीक है ना। सो ये एम्प्लॉय डिपेंडेंट नाम से मैं इसको टेबल को कर लिया। तो अब क्या हुआ इस केस में, यहाँ पे क्या आ गया, सारे एम्प्लॉयज के डिटेल आ गया। तो एक बार ये यहाँ देखो, इस केस में एम्प्लॉय के डिटेल रिपीट हो रहे थे, यहाँ पे लॉट ऑफ नल वैल्यूज थी, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। पहले तो एम्प्लॉय की कोई इन्फॉर्मेशन रिपीट नहीं हो रही है। सेकेंड टेबल में मैंने क्या करा, डिपेंडेंट नेम जो हम करते थे कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को अलग ले जाओ और जो पेरेंट रिलेशन है उसकी प्राइमरी की को उसके साथ लगा दो एज अ प्राइमरी की। तो मैंने क्या करा, ये EID को यहाँ डाल दिया एज अ फॉरेन की, और दोनों को मिला करके यानी कि डिपेंडेंट नेम और डिपेंडेंट ID ये दोनों को मिला करके मैंने इसका प्राइमरी की बना दिया। अब क्या होगा कि इस टेबल के अंदर देखो, यहाँ रिडंडेंसी है नहीं, यहाँ भी नहीं है, क्यों,
क्योंकि अब हर एक रो की है, ये दोनों कॉम्बिनेशन की है, ये केवल की नहीं है। तो चूंकि अगर ये की होता तो यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं हो पाता, इसलिए मैंने प्राइमरी की जो बनाया EID और डिपेंडेंट नेम मिला करके बनाया, तो अब ये कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक होगा, ठीक है ना। सो अब इस तरह से क्या होगा, किसी के पास नहीं है, अगर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी ही नहीं, बिकॉज इज नॉट हैविंग एनी डिपेंडेंट, और उसकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे स्टोर्ड है। अगर किसी के पास 10 हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 10 रोज आ जाएंगे, किसी के पास 2 हैं तो केवल 2 रोज आएंगे, लेकिन कभी भी वो सारी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ना तो यहाँ कोई नल वैल्यू आएगा और ना ही रिपीटेशन ऑफ डेटा आएगा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, वी कॉल इट एज डिकम्पोजिशन ऑफ टेबल, ठीक है ना। और ये डिकम्पोजिशन हमारा लॉसलेस होना चाहिए। लॉसलेस का मतलब कि जब भी मैं इसका नेचुरल ज्वाइन लूं तो मेरा ओरिजिनल वाला टेबल आ जाना चाहिए, दैट इज व्हाट दिस मीन्स, ठीक है ना। सो ये हमारा 1NF, सो वी से दैट अ टेबल। अब इस केस में देखो ये क्या है, अनडिविजिबल है, दैट मीन्स एटॉमिक डोमेन है, ई नेम का एटॉमिक डोमेन है, डिपार्टमेंट का एटॉमिक डोमेन है, यहाँ भी देखो EID एटॉमिक डोमेन और डिपेंडेंट नेम इज ऑल्सो एटॉमिक डोमेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय भी 1NF में है और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी 1NF में है। सो दिस इज हाउ वी गो फॉर रीडिजाइनिंग। एनीवे, अगर आपने ER डायग्राम के रूल्स और जो कन्वर्जन के मेथड्स हैं उसको आपने अच्छे से कर रखा है, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है, वी डू नॉट नीड टू नॉर्मलाइज इट टू 1NF। तो अगर कहीं टेबल दिया हुआ है और आपको मेंशन्ड है कि ये वाला एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड है या ये कंपोजिट है, तब तो वो टेबल आप कह सकते हो कि 1NF में नहीं है। अगर मेंशन नहीं है तो सिंपली लिख दो, वी अज्यूम दैट ऑल द columns are atomic in nature and therefore the given table is in 1NF। इतना क्लियर है? Yes, sir. Okay, so we'll stop here. Next class we'll be talking about this functional dependencies, and we'll start with the second normal form. So we'll first discuss, there are a lot of concepts to be discussed in functional dependencies, and these concepts are very important with respect to database design. So you have to be attentive in this class, have a pen and paper, we'll be doing some questions into that, and whenever we are coming for the next class. So we'll stop here. I'll call your names, you have to speak out your roll numbers. So Abhishek, I'll stop sharing. Yes, sir. Your roll number, beta? Rule number 1. 1. Aditya? 4, sir. Aditya Singh? 5. Ajit Gupta? Roll number 6. And then Akriti? Present, sir. Roll number 7. Alka? Sir, roll number 8. Alok? Roll number 9. Ankita? Sir, roll number 11. Anushka? Roll number 12. Arpit? रोल नंबर 15। विशाल हांडा, वेट किया करो, पहले ही मैसेज मत डाला करो। किसका नाम बुलाया अभी मैंने? सर अर्पित। ठीक है। देन भव्य? Sir, roll number 16. दिव्यानंद? Sir, roll number 17. गौरव? Sir, roll number 18. कनक? Sir, 22. मयंक? Sir, 23. 23। फहीम? 23. फहीम? Roll number 24, sir. मोहित? 25 present, sir. मोहित तोमर?
26, sir. Neelu, Sir, 27. Om Dutt, Sir, 30. Pooja, Sir, 32. Prachi, Sir, 34. Prakhar, 35. Prakriti, Sir, 36. Prateek, 37, sir. Pushkar, Sir, roll number 38. Rahul, Sir, 40. Rani, 41. Rupali, Sir, 44. Sahil, Sir, 45. Sanjay, Sanjay Tiwari, Sir, 47. Shreya, Sir, roll number 50. Sonam, Sir, 51. Unnati, Sir, 54. Utkarsh, Sir, 55. विशाल हंडा 58। विशाल हंडा का क्या रोल नंबर है? Sir, 58. विशाल कुमार, Sir, 57. विशाल कुमार is 57 Yes, sir. and then Yashomani 59. Yes, sir. Yes. Okay, thank you.